کے کلام کو، خداوند کے بندہ کو بھرپور تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں. ہاللیلویا. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اپنی جگہ پہ تشریف رکھ سکتے ہیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے بابرکت دن کے لیے اور اس گھڑی کے لیے، کیونکہ خدا نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم آج کے دن اپنی فتح کو، اس کی فتح کو جی اپنی فتح کو ابلیس پر اور اس کی ساری تاثیروں کے اوپر سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں جمع ہو سکے. آمین. آج کا دن جو ہے وہ فتح کا دن ہے. ہاللیلویا. مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے ہم سب کے لیے بڑی فتح کا اور بڑے جو ہے وہ آنر کا دن ہے. آمین. کیونکہ ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ جب کوئی پرانی انسانیت میں رہتا ہے وہ سٹل گناہ میں ہے، ابلیس کے کنٹرول میں ہے اور وہ مردہ حالت میں ہے. جو زندگی گناہ میں ہے، کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی؟ مرے گی. اور اگر وہ سٹل گناہ میں ہے تو وہ سٹل مردہ حالت کے اندر ہے. روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہو سکتا ہے وہ آپ کو بالکل بڑے اچھے خوبصورت نوجوان بیٹے بیٹیاں بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان میں زندگی نہیں. اور جس میں زندگی نہیں ہے اس کے لیے آنے والا وقت بڑا مشکل ہو سکتا ہے. جو خدا کے فرزند ہیں ان میں زندگی ہے. جو خدا کے فرزند ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان میں زندگی ہے. لیکن جو شریر کے فرزند ہیں، جو ابلیس کے فرزند ہیں، ان میں میرے عزیزو زندگی نہیں ہے. زندگی وہی پاتے ہیں جنہوں نے یسوع کو قبول کیا. ہاللیلویا. کیونکہ زندگی دینے والا یسوع ہے، اور جو کوئی یسوع کو لے لیتا ہے، جو اسے پہن لیتا ہے، اس میں اس کی دی ہوئی زندگی آتی ہے. آمین. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے بابرکت دن کے لیے. بہت دنیا کے تمام تر حصوں میں جو ہے وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مدرس ڈے کو منایا جا رہا ہے. مدرس ڈے کے تعلق سے مسز جو ہے وہ آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کلام کی بڑی خاص باتیں ہیں میرے عزیزو. بھی اب ہم سب نے عید قیامت المسیح جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا تھا. ایسٹر سیلیبریٹ کیا تھا. عید قیامت المسیح کیا ہے، ریزریکشن ڈے کیا ہے، وہ ہم سب نے سیلیبریٹ کیا. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کتنے دنوں تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے؟ کنفرم ہے 40 دن. اور 40ویں دن کیا ہوا؟ مسیح یسوع جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اٹھائے گئے. اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے عید سعود بھی کہتے ہیں، عید سعود المسیح. اسینشن ڈے بھی کہا جاتا ہے. اسینشن کا مطلب ہے مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا. 40ویں دن یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور اس کے 10 دن کے بعد ہولی اسپرٹ جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا. یعنی یسوع نے اسے بھیجا. پاکر کو کس نے بھیجا؟ یسوع نے بھیجا 50ویں دن پر. اس لیے اسے عید پینتیکوست کہا جاتا ہے. 40ویں دن یسوع مسیح 40 دن تک زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں سے ملتے رہے، انہیں نظر آتے رہے، ان کو کلام کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ ان کے بارے میں بتاتے رہے، ان کو مضبوط کرتے رہے. کیونکہ ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ اپنے ایمان کو کھو چکے تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ اب استاد جو ہے وہ مر گیا ہے، استاد کو دفن کر دیا گیا ہے، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اور بہت سارے اس میں سے ابھی تک یقین نہیں کر رہے تھے کہ مسیح زندہ ہو چکا ہے.
उनके माइंड में शक था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि जो शख्स जिंदा हो जाए उनको आके मिले, उनके साथ बातचीत करे, उनके साथ खाना खाए, वो उसकी पसली में हाथ लगाकर चेक करे कि वाकई जख्म है, ये कोई रूह तो नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जलाली बदन के साथ जिंदा हुआ। उसके ऊपर टाइम और ये जो दूसरी चीजें हैं वो जो है वो उनसे वो ऊपर था। वो बंद दरवाजों में भी आ सकता था, बंद कमरों में दाखिल हो सकता था, वो खा भी सकता था, काम भी कर सकता था, सब कुछ कर रहा था। आपको पता है यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए बारबीक्यू भी किया जिंदा होने के बाद। ऐसा ही यीशु ने आकर उन्हें कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और क्या जी ताजी सारी रात मछलियां पड़ियां, मेहनत कर दे रहे हैं, और सुबह जो है वो अभी नाश्ते के लिए भूख लगी। और यीशु ने क्या किया, उनको मछलियां जो है वो क्या कर घूम के उनको जो है वो दी। तो यीशु मसीह 40 दिन तक जिंदा होने के बाद उनको नजर आते रहे, अपने शागिर्दों को, उनको ईमान में मजबूत करते रहे, उन पेशन गोइयों के बारे में एक्सप्लेन करते रहे जो यीशु मसीह के ताल्लुक से थी, उनको बताते रहे। अमोस की राह पर यीशु मसीह यही कर रहे थे शागिर्दों के साथ। जब जा रहे थे तो उनको वो हवाले बताते थे कि कलाम में ऐसा लिखा है उसके बारे में, कलाम में ऐसा लिखा हुआ उसके बारे में, और उनके दिल जोश मारने लगे। वो कहने लगे कि वाकई ये कलाम जो है वो बड़ा जबरदस्त कलाम है, और उनको समझ आ गई कि ये यीशु मसीह है। पहले उनकी आंखें बंद थी, लेकिन जब उनकी आंखें खुली उन्होंने पहचान लिया कि यीशु मसीह है। आमीन। और इसी तरह से यीशु मसीह 40 दिन तक उन्हें नजर आते रहे ताकि उनको मजबूत कर सके। अभी हम जो है वो ईद सऊद जो है वो मनाने वाले हैं, लेकिन 18 तारीख को है। ईद सऊद कब है? 18 को है। तो इसलिए मैंने सोचा आज के संडे में आपको थोड़ा सा उसके ताल्लुक से बता सकूं कि क्यों इसे जानना हमारे लिए यानी मसीहियों के लिए जरूरी है, इसकी क्या अहमियत है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसेंशियल डे हमें सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें इसकी अहमियत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे चीजों, यीशु मसीह ने चंद बड़ी खास बातें जाने से पहले कही, और वो बातें जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और उनको समझना, उनको जानना और उनके ऊपर अमल करना हम सब के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जाने से पहले यीशु ने ये बातें कही थी। मेरे साथ आप निकालिएगा जरा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, उसका 28वां बाब है। सोलहवीं आयत से पढ़ेंगे 20वीं आयत तक। निकालें, आमीन कहें ताकि हम इसको पढ़ सकें। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। ये वो पहाड़ है, यहां से यीशु मसीह ने अब शाउद करना है, यीशु मसीह ने क्या करना है, आसमान पर उठाए जाना है। वहां पर उस पहाड़ पर गए, और क्या हुआ जी सुनिएगा। और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। अभी भी उनके दिलों में क्या है, शक है कि वाकई ये यीशु मसीह है या नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारे ईमान ला चुके थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि यीशु जिंदा हो चुका है। लेकिन अभी तक उन 11 में से ये वो खास शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के सबसे क्लोज सर्कल के अंदर थे। यीशु के बहुत सारे शागिर्द थे, ठीक है, लेकिन ये 11 जो है वो खास में से खास है। और इन 11 में से एक और सर्कल है, वो उससे भी खास है। वो 3 शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के हर वक्त साथ रहते थे। कौन कौन है? याकूब, यूहन्ना और ये 3 ऐसे शागिर्द हैं जो सबसे क्लोज सर्कल में रहने वाले। इसके बाद 11 है, और इसके बाद फिर बहुत सारे और शागिर्द हैं यीशु मसीह। तो इनमें से भी, इन 11 में से भी लोग अभी भी शक कर रहे हैं कि वाकई यीशु जिंदा हो गया या नहीं। आगे लिखते क्या है,
यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने को उसकी बरकत। क्या बातें यीशु ने यहां पर की, मैं स्टार्ट करता हूं सबसे लास्ट जो पॉइंट है वहां से। 20वीं आयत में क्या लिखा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक क्या हूं तुम्हारे साथ। पहली बात, हर शख्स इस बात को जान ले और अपने दिल में बिठा ले कि यीशु मसीह दुनिया के आखिर तक मेरे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक ये दुनिया कायम है, तब तक वो हमारे साथ है। ये किसका वादा है? ये किसकी बातें हैं? यीशु की बातें हैं। हालात जैसे भी क्यों ना हो, चाहे आप दुख में हो, परेशानियों में हो, चाहे आपके ऊपर बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन इस बात को याद कर ले कि खुदावंद हमेशा आपके साथ है। आज तक दुनिया के किसी शख्स ने यह दावा नहीं किया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे नबी आए हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं, नबियों का जिक्र है, नबियों के सहीफे हैं। किसी नबी का दावा नहीं है और किसी शागिर्द का भी यह दावा नहीं है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यह सिर्फ और सिर्फ यीशु का कौल है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, आपसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, हमेशा आपके साथ रहता। एक दफा लोग कहते हैं जी डर बड़ा लगता, हम अकेले थे डर गए। आपका क्या जवाब होना चाहिए? आपकी क्या बात होनी चाहिए? आपके अल्फाज क्या होने चाहिए? मैं कभी नहीं डरूंगा क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं। दाऊद कहता है मैं अकेला नहीं आ रहा हूं तेरे साथ जाके लड़ने के लिए, बल्कि कौन आ रहा है? सिर्फ लोगों को दाऊद अकेला जो है वो नजर आता है, लेकिन वो कहता है मैं खुदावंद के नाम से आता हूं, मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ मेरा खुदा। आप जहां भी जाते हैं, चाहे आप ड्यूटी पे जाएं, चाहे आप घर में हो, चाहे आप किसी और जगह ट्रेवल करें, कहीं भी हो, खुदा आपके साथ है। हर कोई ये अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि यीशु मेरे साथ है। आमीन। मैं अकेला नहीं हूं। आज के बाद अगर आप दुख में से भी गुजरे, परेशानियों में से भी गुजरे, कुछ भी हो, आपने इस बात को याद रखना है, यीशु मेरे साथ है। आमीन। कहना मैं अकेला नहीं हूं। वो मेरी हालत को जानता है, वो मेरी सिचुएशन से वाकिफ है, क्योंकि वो मेरे साथ साथ चल रहा है। बुजुर्ग दाऊद इस बात को लिखते हैं 23वें ज़बूर के अंदर, क्या कहते हैं? चखा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। हालेलुया। बुजुर्ग दाऊद लिखता है तू मेरी मां के पेट से ही मेरा खुदा है। हालेलुया। तो आप सोचें कि जिसने आपको आपकी मां के पेट से संभाला है और वो कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, जब तक आप इस दुनिया से इस फानी बदन को छोड़ के नहीं जाते, उसके आगे भी नहीं छोड़ता वो कभी, बल्कि फिर तो मुलाकात सामने सामने हो जाती है। आमीन। फिर तो आप रूहानी बदन में आ जाते हैं, फिर तो मुलाकात आमने सामने है। हालेलुया। इसलिए मेरे चीजों, यीशु के ये अल्फाज है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जो मर्जी हो जाए, हालात जैसे भी क्यों ना हो, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला और अपने लोगों को तसल्ली देता है। यीशु मसीह ने हर किसी को इस बात के लिए तसल्ली दी, क्योंकि शागिर्द समझ रहे थे कि अब यीशु मसीह चला गया है, अब यीशु मसीह पहले जो समझ रहे थे मर गया है, अब वो क्योंकि बहुत सारे उसमें यकीन भी नहीं कर रहे थे कि जिंदा हो चुका है, इसलिए यीशु ने ये बातें कही
कि भाई दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी भी घबराओ मत, कभी भी डरो मत, बेखौफ होके चलो इस दुनिया के अंदर, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस बात के लिए एनकरेज कर रहे थे और बार बार उन्हें सिखा रहे थे कि तुमने क्या करना है जी, मसीह की मिनिस्ट्री को लेकर आगे चलना है, तुमने उसकी बादशाहत को वुसअत देनी है। इसलिए याद रखें, हर किसी के साथ खुदा मौजूद है। आमीन। एक गीत हम अक्सर सुनते हैं, मैं नहीं कल्ला, गाते ना गीत, आपने बहुत दफा सुना होगा। कई दफा आप जब जो है वो गुनगुनाते हैं, आपको आता भी है, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, खुदा ऑलवेज मेरे साथ। याद रखिए इस बात को, जब आप इस बात पे भरोसा करके चलेंगे ना, तो खुदा वाकई ही साबित करेगा कि वो आपके साथ है। आमीन। वो आपके लिए हर तरह की फेवर को क्रिएट करेगा, वो आपके लिए लोगों के दिलों को नरम करेगा, वो आपके लिए जो है वो अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि आपकी मदद और रहनुमाई कर सके। आमीन। इसलिए याद रखिए, आपको हमेशा ये कहना है कि मैं अकेला नहीं हूं। आप जंग में हो, चाहे आपकी जंग है इब्लीस के साथ, किसके साथ जंग है आपकी? लोकां दे नाल नहीं है, तो डंडे सोटे नहीं चलाने, आपकी जंग इब्लीस के साथ, और ये रूहानी जंग है। और इस जंग में आपकी मददगार जो है वो कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। वो हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं उसकी। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी बात यीशु ने कहा, दुनिया का कुल इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें डर कर छुपने की जरूरत नहीं है कमरों में। आपको पता है वो शागिर्द जो थे वो डर के मारे क्या कर रहे थे? कमरों में छुप रहे थे, अंजील की बिशारत बात करने से डर रहे थे। पतरस ने इनकार कर दिया था वहां पर खड़े होकर, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भाई इसको नहीं जानता हूं, ये कौन है। और यहां तक कि वो तो लान तान करने लगा, बाद में 3 बार उसने यीशु का क्या कर दिया? उसने कहा शागिर्दों को याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और दूसरी बात यह कि दुनिया का, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। और मेरे सीधो, जिसके पास इख्तियार है, सब चीजें उसी के कब्जा और कंट्रोल में है। ऐसा ही है, जिसके पास हर चीज का इख्तियार है, हमारे हालात से वो वाकिफ है, हालात को चेंज करना, हालात को बदलना किसके हाथ में है? उसी के हाथ में। अभी हमने एक गीत गाया था, हालात बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं हालात? यीशु तेरे आने से, यानी उसकी कुदरत और उसकी पावर से आपके हालात बदलते हैं। हम हालात को देखकर इतने परेशान हो जाते हैं कि भाई इन हालात का मुकाबला कौन करेगा, इस मुसीबत का मुकाबला कौन करेगा, कौन मुझे निकालेगा यहां से, कौन मेरा मददगार होगा। कई दफा हम लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, कहां से हमें जो है वो फेवर मिलेगी, कौन सा शख्स जो है वो किसकी सिफारिश लगाऊं। ऐसा ही है, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं अपना मददगार, कौन हो सकता है मेरी सिफारिश के लिए। लेकिन याद रखें, कुल इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। ये यीशु के लफ्ज है मेरे शिष्य, और ये कभी टल नहीं सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने ये बात कही थी, आसमान और जमीन टल सकता है पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टले। सो इसका मतलब है कि यीशु के पास कुल इख्तियार है। और सोचे कि यीशु ने ये इख्तियार लिया कैसे है? यीशु ने ये इख्तियार लिया कैसे है? ताबेदारी, फरमाबरदारी, ऐसा ही है, अपने आप को खाली करके, अपने उस मकाम को छोड़कर, इंसानों के मुशाबा होकर। कलाम में लिखा कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया, और वो बदन पहनकर, यानी इंसानी बदन पहनकर वो मुजस्सम हो, अपनी उस कुदरत, उस इख्तियार, उस पावर को छोड़ा और बिल्कुल किनके मुशाबे हुआ जी? इंसानों के मुशाबे हो गया।
और इस कदर बाप का वफादार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत भी उसने गवारा की है। मेरी और आपकी खातर तस्लीम उसने बर्दाश्त की है। उसके मुंह पे तमाचे मारे गए, कोड़े। आप इस पूरी स्टोरी से वाकिफ। ये इख्तियार उसे ऐसा नहीं मिला है, ये सोए सोए नहीं मिल गया है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं खुदावंद अपने महबूब को नींद में दे देता है। और भाई जी यसू ने देखो क्या करके दिखाया और फिर जाके उससे ये इख्तियार मिला है। जेड़े बहुते सोना लेने, सोना बंद करके दुआ करो, फिर इख्तियार मिलेगा। फिर आपको पावर और कुदरत मिलेगी जब आप प्रे करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप खुदा के साथ अपना टाइम गुजारेंगे, तब आप पावर और कुदरत को रिसीव करेंगे। जब आप प्राइस पे करेंगे। यीशु मसीह ने प्राइस पे किया कि नहीं की? अपनी जान देकर, अपना खून देकर। कलाम में लिखा कि उसने हमें अपने कीमती लहू से खरीदा। सो मेरे जीजो, जब यीशु ने अपनी जान देकर ताबेदारी और बाप की फर्माबरदारी की और उस प्लान और उस मंसूबे को पूरा किया जो बाप ने बनाए आलम से बना के रखा था जब इंसान ने गुनाह किया। अब सोचे इस बात के लिए कि मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसी वजह से उसको वो नाम बख्शा गया है। क्या लिखा है जी? इसी सबब से उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आमीन। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, वो चाहे आसमानियों का हो, आसमान पर जितनी मखलूकात रहती हैं, फरिश्ते हैं खुदा के, और जितनी मखलूकात हैं जमीन पर, जितनी मखलूकात हैं, हर एक घुटना किसके आगे झुकेगा? ये है मेरे और आपके यीशु का इख्तियार। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसे दिया गया है? मेरे चीजों, यीशु को इख्तियार ऐसे नहीं मिला। इसलिए मेहनत, कुर्बानी और स्ट्रगल आपके सामने है। हम पढ़ सकते हैं खुदा के कलाम में। और यीशु ने आपको भी इख्तियार दिया है। वो इख्तियार जो यीशु को मिला है, उसमें से यीशु ने भी आपको इख्तियार दिया है। अब उस इख्तियार को इस्तेमाल कैसे करना है, उसे रिसीव कैसे करना है, और उसमें रहते हुए जिंदगी कैसे गुजारनी। अब सोचे, इख्तियार तो मिल चुका है, अब उस इख्तियार को इस्तेमाल कैसे करना है, उस इख्तियार को अपनी जिंदगी में कायम कैसे रखना। क्या हमें यीशु को फॉलो करना चाहिए? इसीलिए कलाम कहता है हम उसको इमिटेट करें। इमिटेट का मतलब है कॉपी करें, यानी उसके कद के अंदाजा तक पहुंचना, उस जैसा मिजाज अपनाना, उस जैसी शख्सियत बनना, मसीह जैसा बनना। हम अक्सर कहते हैं मैं मसीह का हूं। ठीक है जी, मैं किसका हूं? मसीह का हूं। तो भाई अगर आप मसीह के हैं, आपके ऊपर उसके लहू की मोहर हुई है, तो फिर आपके काम भी यीशु जैसे होने चाहिए। क्या हमारे काम यीशु जैसे हैं? क्या हम यीशु की तरह बोलते हैं? हम तो समटाइम किसी और की जुबान बोल रहे होते हैं। घुमंड की बातें, फख्र की बातें, गुरूर की बातें, लड़ाई झगड़े, नफरत, गालियां, बददुआएं, ये किसकी जुबान है? यीशु की जुबान कैसी थी? कलाम कहता है वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता। बहन ने कहा बेटी किसने कहा बताया? वाकई ही इस कदर शाइस्ता और शगुफ्ता बातें करता कि कोई उसकी बात में उसे गुनाहगार साबित नहीं कर सकता। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा अगर कोई तुम में ऐसा हो जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, कोई भी ऐसा नहीं। आपकी बात ऐसी होनी चाहिए जैसी यीशु जैसी। आपका किरदार, तभी लोग आपको देखकर मसीह को कबूल करेंगे। आपके कामों को देखकर लोग किसकी तारीफ करेंगे? आसमानी बाप की तारीफ करेंगे। ते जे काम किसी और के हो, बदन यीशु दा होवे, ते काम जड़े ने वो
शरीर के हो तो फिर आप समझ सकते हैं किसकी तारीफ होगी फिर? इब्लीस की। जो इब्लीस के फर्जंद हैं वो उसी के काम करते हैं। यीशु ने फकीर और फरीसियों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। उसने कहा अगर तुम खुदा के फर्जंद होते तो फिर यानी इब्राहिम के फर्जंद होते तो तुम इब्राहिम जैसे काम भी करते, क्योंकि इब्राहिम खुदा की ताबेदारी और वफादारी करने वाला शख्स था। आमीन। इसीलिए याद रखिएगा कि जो कुछ आप करें आप मसीह की तरह करें, बिल्कुल उसी तरह से जिंदगी गुजारें। आप दुआया अपना चेक कर लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि रूहानी तौर पे आप मजबूत हो, जोर में बढ़े, कुदरत में बढ़े और इब्लीस की हर एक तासीर और उसके प्लान और मंसूबे के ऊपर गालिब आए, तो आपको यीशु जैसी दुआया जिंदगी बनाने की जरूरत है। यीशु मसीह घंटों दुआ करते हैं। यीशु मसीह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है वो प्रे करने चले जाते हैं, अभी सूरज पहले निकल। यहां पर कई नौजवान दोपहर 12 बजे भी उठते हैं, दोपहर 2 बजे भी उठते हैं, 9 बजे 10 बजे जब दिल करता उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं। कोई प्लान, कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। यीशु की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। रूहानी तौर पर आप देखिए किस तौर से वो दुआ करता है, घंटों खुदा की हजूरी में गुजारता था। किसी से लड़ाई और झगड़ा नहीं है। कलाम में लिखा वो गालियां खाकर किसी को गालियां नहीं देता था, किसी को धमकाता नहीं था। यहां पर तो 1 मिनट में धमकी शुरू करता है, ये तू जानता नहीं मैं ऐसी बातें आप देख लो, बड़ी बड़ी बातें लोग, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा स्टेटस ये है, मुझे फलां जानता है, मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है। अरे भाई यीशु ने कभी ऐसी कोई बात नहीं। यीशु ने तो अपने दुश्मनों को भी जाके कभी जिंदा होने के बाद नहीं दिखाया, और सरदार कायनों को फकीर फरीसियों जाके कभी क्या यीशु ने लो पढ़ो मैं जिंदा हो गया हूं, करो मेरा जो कुछ करना। कहा कभी यीशु ने उसको पूरा इख्तियार और कुदरत रखते हुए भी जाके कभी उनका मुकाबला नहीं किया, कभी उनको जाके नहीं बोला भाई ये देखो मैं जिंदा होके आ गया हूं। यहां पर मसीही जो है वो एक दूसरे को इस तरह डरा रहे होते, धमका रहे होते कि बिल्कुल मसीह की तालीम से अपोजिट। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, यीशु को इख्तियार ऐसे ही नहीं मिला। नो डाउट उसके पास खुदाई का सारा कुछ था, लेकिन जब वो दुनिया में आया, हमारे मुशाबे हुआ, तो उसने वो सारी चीजें करके दिखाई जो हमें करनी है आज। आमीन। ताकि हम उसको करते हुए उसको फॉलो करें एज अ रोल मॉडल के तौर पे, एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। कलाम में लिखा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कई लोग बड़ी गंदी गंदी गालियां करते हैं, बहुत खतरनाक किस्म की बड़ी बुरी बुरी बातें कहते हैं, आप सुन नहीं सकते उनकी लैंग्वेज, और फिर वो कह रहे ऐसी मसीही हैं। तो आप यकीन करें उनका यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों का यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो सिर्फ बराए नाम मसीही कहलाए लेकिन उनके काम बिल्कुल ऑपोजिट हो। सो उन्हें मेहनत करने की जरूरत है, उन्हें कुर्बानी देने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है, अपनी सोचों को बदलने की जरूरत है, ताकि यीशु का दिया हुआ इख्तियार इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। तभी शैतान उनके ताबे होगा। अगर किसी की जुबान उसके कंट्रोल में, तो शैतान उसके कंट्रोल में आ जाएगा। क्या समझते हैं आप? अगर किसी की जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, कोई बंदा अपना खाना पीना कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बताइए इब्लीस उसके कंट्रोल में आ जाए? कभी भी नहीं आएगा। इसलिए याद रखिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को तरतीब में लाना और रखना बहुत जरूरी है। तभी आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे, तभी आप जब बदरूहों वाले शख्सों पे हाथ रखेंगे, बदरूहें उनमें से निकल कर जाएंगी। जब आप उन्हें कहेंगे, आपके इख्तियार को, आपकी अथॉरिटी को फॉलो करती है वो चीज। आपके मुंह में खुदा ने अथॉरिटी और इख्तियार रखा है। आमीन। यीशु ने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं, क्या करो? सांपों और बिच्छुओं को क्या करो जी? कुछ लो। बदरूहों को, जो बदरू गिरफ्ता है उनको आजाद करो, कोड़ियों को, बीमारों को चंगा करो। और यहां तक यीशु ने कहा कि मुर्दों को जलाओ, यानी क्या करो?
मुर्दों को जिंदा करो। मत्ती की इंजील पढ़े आप, वहां लिखा हुआ है यीशु ने जब अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, 8वें बाब में देखे 9वें बाब में, तो हमें नजर आता है कि वहां पर यीशु कहता है मुर्दों को जिंदा करो। इतना बड़ा इख्तियार मिल चुका है कि मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं आप। लेकिन कभी कभी पादरी भी डांटते हैं, पता नहीं जिंदा होना कि नहीं होना, वो पूछते ही नहीं है कब मुर्दे को क्या जिंदा रहने दो यार, पता नहीं बेइज्जती ना हो देखे। ऐसा दुआ करके ये भी नहीं पूछते भाई चेक करो ठीक हो कि नहीं हो। रीजन क्या है? क्योंकि उनको शक होता है कि पता नहीं ठीक होना भी कि नहीं होना। लेकिन अगर इख्तियार है, आप कहें उसी वक्त उठ गए, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। पतरस और यूहन्ना जब वो जा रहे थे वहां पर दुआ करने के लिए, कितना तो जोर लगाया उन्होंने, बताइए जरा, उन्होंने क्या कहा सिर्फ उसको, जो वहां शख्स बैठकर भीख मांग रहा था, वो कह रहे भाई, वो उनसे मांग रहा था सोना चांदी पैसे रुपए, वो कहा भाई सोना चांदी तो साढ़े को है को नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यानी हमें इख्तियार मिला है कि हम लंगड़ों को चंगा करते हैं, हमें इख्तियार मिला है कि हम बीमारों को चंगा करते हैं, हमें इख्तियार मिला है कि हम बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करते हैं, हमें इख्तियार मिला है कि आपके हालात को बदल सकते हैं। हालेलुया। और उसी वक्त उसने कहा यीशु मसीह के नाम से उठ, और उसने हाथ पकड़ के उठा दिया। पतरस का इख्तियार इस कदर पावरफुल था कि सिर्फ उसके साए में लोग मरीजों को लाकर रख देते थे और उसी वक्त वो शिफा याफ्त होते। इस कदर पावरफुल है अथॉरिटी मसीह ने जो दी हुई है। लेकिन उस अथॉरिटी में मूव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वैसा ही करैक्टर अपनाना है जैसा यीशु जैसा है। अगर आपका किरदार यीशु जैसा है तो फिर आप ये अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे। और इब्लीस को पता है कि आपका लेवल क्या है। मैं ये भी आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, जो लोग समझते हैं दुआ करने की जरूरत नहीं, कलाम पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अच्छी जिंदगी गुजर रही है, ऐसे ठीक है सब कुछ, लेकिन इब्लीस ये जानता है कि आपकी अथॉरिटी और पावर क्या है, आप कमजोर हैं, कहां पर आपकी कमजोरियां हैं, वहीं पर जो है वो आपको गिराने की कोशिश करता है। वो हर एक को जानता है कि उसका इख्तियार क्या है। इसलिए कई दफा लोग कहते हैं दुआ तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इब्लीस को पता है कि आपका इख्तियार क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीजों से वो वाकिफ है। इसलिए मेरे जीजो, अथॉरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें दी गई है, उसको पहचानना, उसमें जिंदगी गुजारना और उसको इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने के लिए आपको वैसा किरदार अपनाने की जरूरत है। आमीन। यीशु जैसा बनने की जरूरत है, तभी आप उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कर पाएंगे। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात बड़ी खास यीशु ने कही कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, तुम पर पाक रूह को नाजिल करूंगा। किसने कहा? यीशु ने कहा। उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूं और जाकर मैं फिर क्या करूंगा, पाक रूह को भेजूंगा, नाजिल करूंगा। लूका की इंजील निकालिएगा 24वां बाब जरा निकालिए। लूका के मार्फत लिखी गई इंजील लूका साहब, आइए मेरे साथ। हालेलुया। आखिरी बात है 24वां और 49 वर्सेस की जो है वो पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। किसका वादा किया है जी? पाक रूह का वादा किया है मेरे बाप ने। और इसकी पेशन गोई कहां पर हमें मिलती है? योएल नबी की किताब में हमें इसकी पेशन गोई मिलती है। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर क्या करूंगा, अपना रूह क्या करूंगा जी, उंडेलूंगा, नाजिल करूंगा। ठीक है, तो बाप का वो वादा यहां पर यीशु कह रहा है, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। कौन नाजिल करेगा? यीशु मसीह नाजिल करेगा। ये वो बातें हैं जो यीशु ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से की। लिखा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं ठहरे। यानी दुआ के लिए तुमने रुकना, क्योंकि 40वें दिन यीशु मसीह उठाए गए। तो ये भी यीशु मसीह ने एक उनसे वादा किया कि पाक रूह को कौन नाज़िल करेगा? मैं नाज़िल करूंगा।
और पाक रूह हमारा दूसरा क्या है? मददगार है। यीशु ने ये बातें पहले कह दी थी कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि क्या करूंगा? एक मददगार यानी रूहे हक, जिसे होली स्पिरिट कहा जाता है, वो तुम पर क्या करूंगा? नाजिल करूंगा। और वो क्या करेगा? तुम्हें आने वाले वक्त की बातें जो है वो तुम्हें बताएगा, और मुझसे वो चीजें लेगा और तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? रिवील करेगा, तुम पे उनको जाहिर करेगा, और वो मेरे नाम को क्या करेगा? ग्लोरीफाई करेगा, जलाल देगा। कौन? पाक रूह। हालेलुया। पाक रूह क्या करेगा? मेरे नाम को जलाल देगा। और बातें कहां से लेगा? यीशु से वो तमाम तर चीजें जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है लेगा और आपके ऊपर रिवील करेगा। हालेलुया। और याद रखिए, पाक रूह यीशु को ही जलाल देता है। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, दुनिया का हर गुनाह माफ तो हो सकता है, हर चीज माफ हो जाएगी जिसके लिए तौबा की जाएगी, लेकिन अगर कोई पाक रूह के खिलाफ कोई बात कहेगा, ना इस वर्ड में माफ होगी, ना आगे जाके माफ होगी, कभी माफ नहीं होगी। रीजन क्या था? कभी यीशु ने ये बात क्यों कही? यीशु मसीह जो बदरूहें निकाल रहे थे, जितने मोजज़ात कर रहे थे, वो किसकी मदद से कर रहे थे? पाक रूह की कुदरत और पावर की वजह से कर रहे थे, उस अथॉरिटी की वजह से कर रहे थे जो पाक रूह की तरफ से यीशु मसीह के जिंदगी में खुदा ने रखी थी। यीशु ने क्या कहा था? खुदावंद का रूह मुझ पर है। हालेलुया। किसका रूह मुझ पर है? खुदावंद का रूह मुझ पर है। और उसको फिल किया, उसको भरा किस? 7 स्पिरिट से। आमीन। खुदा की 7 रूहों से। उसी के बारे में ये पेशेंट कोई और लिखा हुआ है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। उसने उसे खिर्द की रूह से भरा है, उसने उसे स्पिरिट ऑफ काउंसल जो है वो उससे भरा है, स्पिरिट ऑफ माइट से भरा है, उसने उसे स्पिरिट ऑफ द फेयर ऑफ द लॉर्ड से भरा, यानी खुदा के खौफ की रूह से, जो हमारे दिलों में ऑलवेज होनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में खुदा के खौफ की रूह है तो हमें पता होगा सही क्या गलत क्या है, और हमें ये नहीं करना क्योंकि हमें खुदा देखता है। कई दफा हम कहते हैं ना, वो चलो कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप याद रखें, जो रूह से हमारे अंदर डाली है वो खुदा के खौफ की, यानी खुदा की इज्जत और रिस्पेक्ट की रूह है। हम कहेंगे नहीं, और कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता है। जब आपके अंदर इस तरह की तबीयत है, इस तरह की सोच है, तो आप याद रखिए कि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा जलाली तौर पर काम करता है। आमीन। पाक रूह मेरे अज़ीज़ों हमें जोर और कुदरत देता है, पावर देता है, अपनी जो है वो गिफ्ट्स जो है उसकी जो नेमतें हैं वो हमारी जिंदगी में जाहिर करता है, ताकि क्या हो सके? आपकी इंडिविजुअल तरक्की हो और कलीसिया की तरक्की हो सके। आमीन। यीशु ने कहा, जब पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा, जब आप ईमान पहला बार पढ़ते हैं तो वहां देखा, जब पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा तो क्या पाओगे? तुम कुव्वत पाओगे, जोर पाओगे। क्योंकि शागिर्द बड़े डर गए थे, कमजोर हो रहे थे कि भाई कैसे हम लोगों का मुकाबला करें, कैसे हम जाके अंजील की मुनादी करें। जब पाक रूह उनके ऊपर नाज़िल हुआ, उसके बाद उन्हें तदेरी का रूह मिला। हालेलुया। उसके बाद उन्हें कुदरत और पावर का रूह मिला। तभी पतरस के पहले वाज में कितने लोग कन्वर्ट हुए जी? कितने लोग चेंज हुए? 3000। जस्ट वन वर्ड, एक प्रीचिंग, एक ही मैसेज दिया और उससे 3000 लोगों ने तौबा की। अब इमेजिन करें, 3000 लोग किसकी कुदरत से? पाक रूह की कुदरत से, पाक रूह की पावर और अथॉरिटी से, वो कुव्वत का लिबास। और मैं आपको बता दूं, पाक रूह कोई और नहीं दे सकता। पाक रूह का बैप्टिज्म किसी और की तरफ से नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु से मिल सकता है। पानी का बैप्टिज्म आपको बहुत सारे लोग दे सकते हैं, लेकिन पाक रूह सिर्फ और सिर्फ यीशु दे सकता है। पता क्यों? यूहन्ना ने क्या कहा? उसने कहा, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे क्या है? जोरावर है, मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा जी? आग और रूह से बपतिस्मा देगा।
और वही दे सकता है पाकरू का बपतिस्मा जिसके पास ये कुदरत और अथॉरिटी है। हालेलुया। किसी और शख्स के पास आज तक अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को पाकरू दे सके। आपको पता है एक जो जादूगर था, शमौन उसका नाम था, वो बहुत सारा पैसा ला के पतरस को कहता, भाई आप पैसा ले लो ते ये पावर ते कुदरत मैनू भी दे दो ताकि मैं भी लोगों के हाथ रखा ते लोग की करन पाकरू पान, लोगों की जिंदगियां बदले, लोग तौबा करें, ये इख्तियार मुझे भी दो। उसने कहा तेरे पैसे और तू गरक हो क्योंकि तूने खुदा की कुदरत को पैसों से तोलने की कोशिश की। पाकरू सिर्फ और सिर्फ यीशु से मिल सकता है। आमीन। यीशु मसीह पाकरू दे सकता है। अगर आपने रूह का मसा पाकरू का बपतिस्म पाना है तो यीशु से मिलना पड़ेगा। आमीन। यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु के थ्रू आपकी जिंदगी के अंदर बरकत के दरवाजे खुलेंगे। यीशु मसीह ने ईद क़याम पे खड़े होकर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो क्या करे, मेरे पास आए। अगर कोई प्यासा हो तो क्या करे, मेरे पास आए, और जो पानी मैं उसे दूंगा उसके अंदर जिंदगी की नदियां जारी करेगा। रिवर्स ऑफ वाटर, जो जिंदगी के पानी के दरिया है, नदियां हैं, उसमें से जारी होंगे। हालेलुया। ये पाकरू के ताल्लुक से यीशु ने बात कही। तो मेरे जो पाकरू देना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, यीशु मसीह का। उसने कहा कि मैं उसे नाज़िल करूं। यही कहा था यीशु ने। जो पाकरू का बैप्टिज्म दे सकता है, जो रूह और आग से भर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, यीशु है। और जैसे ही यीशु आसमान पर गया उसके बाद फिर उन्होंने पाकरू का बैप्टिज्म पाया। 10 दिन के बाद ईद पेंतीकोस्त पे उनके ऊपर फिर पाकरू नाज़िल हुआ। फिर उन्हीं पे हुआ जो पाकरू मांग रहे थे। इन पे हुआ नाज़िल जो पाकरू मांग रहे थे। पाकरू मेरे अजीजों उन्हीं को मिलेगा जो मांगते हैं, जिनके अंदर प्यास है। क्या यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा, आपके अंदर प्यास है पाकरू को पाने की? आपके अंदर वो प्यास है, वो भूख रखते हैं कि आप पाकरू पाएं? पाकरू ऐसे नहीं मिलता। पाकरू के लिए आपको प्यास, भूख, आपको प्यास लगी हो, क्या करेंगे आप? मांगेंगे ना, पानी चाहिए भाई, एक गिलास पानी मिल जाए, और कुछ मिले ना मिले पर पानी एक दफा मिल जाए। अगर प्यास है तो पाकरू जरूर मिलेगा। आमीन। अगर आप खुदा के सामने मांगेंगे, कहेंगे उसे, तो वो जरूर आपको पाकरू देगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी इंकरेजमेंट के लिए, कलाम में लिखा हुआ है, कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें ना दे। अगर कोई रोटी मांगे तो बाप क्या कहे, वो देखे पत्थर की रोटी रख दे। एक छोटी सी आपको ना थोड़ी सी बात है बताता हूँ। जब हम माल्टा में फर्स्ट टाइम आए नए तो पहले दिन ग्रोसरी शॉप पे गए, तो आपको पता है यहाँ पर जो ब्रेड है, माल्टीज ब्रेड, वो ना इस तरह गोल सी बनी होती है, ऐसे लगता है जैसे पत्थर होते हैं, स्टोन की तरह लगती है। तो जब हम ग्रोसरी में दाखिल हुए तो मैंने साइड पे देखा 4-5 ऐसे रखे हुए। सोच रहा था कि यार पत्थर क्यों रखे हुए इन्होंने शॉप के अंदर इतने बड़े बड़े। बाद में पता चला कि ये ब्रेड है। तो वो ब्रेड की शक्ल इसी तरह लगती है। आप कभी उसको ओरिजिनल जब वो बना के निकालते हैं, आप देखें उसका कलर, आप उसका टेक्सचर देखें, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये स्टोन है। और हम लोग को क्योंकि पता नहीं कि हमारे यहाँ ब्रेड जो आती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ बनी। तो इसको जो है हमने देखा तो हमें लगे कि ये शायद स्टोन है। मेरे साथ जो एक दो भाई गए, वो कहने कि यार ये पत्थर रखने का मकसद समझ नहीं आया इनका। हमने पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा भाई ये ब्रेड है। तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि ब्रेड जो है उसका इस तरह का टेक्सचर तो कभी देखा नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, बाप से अगर कोई रोटी मांगे तो वो उसे रोटी देता है, पत्थर कभी भी नहीं देता। अगर कोई मछली मांगे तो उसे मछली देता है, सांप कभी भी नहीं देता। ये बाप की मोहब्बत है। आप जो मांगते हैं वो वही देता है। आमीन। आप खुद देख ले, आपका बच्चा अगर रोटी मांगे कोई दे सकता है पत्थर? कोई भी नहीं देगा। अगर बेटा जो है वो कुछ और मांगे, मछली मांगे, सालन मांगे, कुछ और दे देगा? वही देंगे जो कुछ वो मांग रहा है। इसी तरह कलाम में लिखा है, अगर
तुम अपने आसमानी बाप से मांगोगे तो वो तुम्हें पाखरू क्यों ना देगा। हालेलुया। कई ऐसे लोग ने कहते पाखरू मंगत, कई लोग ने उन्हें ते कंदलीनी स्पिरिट आ जाती, क्यों पास्टर साहब? वो कहते उन्हें ते कंदलीनी स्पिरिट उतर जाती। भाई बात सुने, वो खुदा से पाखरू मांग रहा है, तुम कह रहे हो कि बाप उन्हें कंदलीनी स्पिरिट दे देता है। ये कैसा बाप है? अगर वो पाखरू मांग रहा है उसको कोई और बुरी स्पिरिट दे दे, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं होता। रीजन क्या है कि खुदा से जब कोई मांगता है, प्यास रखता है और वो कहता है मुझे खुदावंद अपने पाखरू से भर, खुदा उसे पाखरू से ही भरता है। याद रखिए इस बात को, ये खुदा की कमिटमेंट है, ये उसका वादा है, ये यीशु मसीह ने ये बातें कही। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए जो बड़ा खास है। हमारे लिए यीशु मसीह का आसमान पर उठाए जाने से हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो रखी गई है। क्योंकि शागिर्द घबरा गए थे कि यीशु चला गया तो अब क्या होगा, अब कैसे मतलब जिंदगी चलेगी, अब किस तरह संकट चलेगा, कोई पता नहीं है करना क्या। इसलिए यीशु ने तसल्ली दी, यीशु ने बड़ी जो है वो उनके साथ जो है वो मोहब्बत से बातें की और उन्हें कहा, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, यीशु ने ये बातें पहले उन्हें बताई 14वें बाब में, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान। मैं क्या कर रहा हूं? बाप के पास जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए क्या करूंगा? जगह तैयार करूंगा और फिर वापस आकर तुम्हें क्या करूंगा? अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये है यीशु का प्लान। इस वजह से यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना मसीहियों के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी खास बात है, क्योंकि यीशु जाते हुए उन्हें उम्मीद दे गया कि मैं आने वाला हूं। आमीन। और ये बात को कंफर्म किया किसने? फरिश्तों ने। ईमान की किताब निकालिए पहला बाब उसका निकाल। फरिश्ते आकर यीशु मसीह के शागिर्दों को कहने लगे, हाँ जी, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कौन सा यीशु? यही यीशु। यीशु के नाम के बहुत सारे लोग हैं, याद रखिएगा। आज भी कई लोगों ने अपने नाम जीसस रखे हुए, आज भी बहुत सारे लोग, ठीक है। उस वक्त भी थे बारी यीशु और इस तरह से कई और भी लोग थे जिन्होंने अपने नाम यीशु रखे हुए थे। लेकिन फरिश्तों ने क्या कहा, कंफर्म किया, यही यीशु जो तुम्हारे साथ अभी बातें कर रहा था, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, अपना फिदिया दिया, जिसने कफारा दिया है, जिसने तुम्हें इख्तियार बख्शा है, जिसने तुम्हें खड़ा किया है इस खिदमत के लिए कि तुम उसके नाम की जाकर बशारत हो। आमीन। यही यीशु क्या करेगा? फिर वापस इसी तरह आएगा। आमीन। कलाम में लिखा वो फरिश्तों के साथ बादलों पे आने को है। हालेलुया। और फरिश्ते उसके साथ जो है वो ताज़ीम करते हुए उसकी उतरे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। लोगों के पास उम्मीद नहीं है, पर हमारे पास जो मसीही हैं, जिन्होंने यीशु को कबूल किया है, उनके पास हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है कि वो यीशु के साथ उड़कर बादलों में उसका इस्तकबाल करेंगे। आमीन। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। तो इसलिए अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए कि हम इस बात के लिए रेडी हो कि हमने यीशु के साथ जाना है। ये वतन जो है ये हमारा वतन नहीं है, बल्कि हमारा वतन कौन सा है? आसमान। जमीन पे परदेशियों की तरह जिंदगी गुजारो। किसकी माने जिंदगी गुजारो? परदेशियों की तरह। यहां पे दिल नहीं लगाना, दुनिया की चीजों से दिल नहीं लगाना, बल्कि आसमान। हम सब कहां के शहरी हैं? आसमानी शहरी हैं। कहां के शहरी हैं जी? साढ़े दिल बड़े खुश हुए। पता क्यों खुश? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमें यहाँ की भी नेशनैलिटी, हम माल्टीज भी होने वाले हैं।
लेकिन आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी खुशी की बात पता क्या है? हम आसमानी शहरी हैं। हालेलुया। हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी ये है कि हम आसमान के शहरी हैं। आमीन। हम ईमान रखते हैं कि खुदा हम सबको जिस दिन यीशु आएगा उसके साथ हम उसका बादलों पे उड़कर इस्तकबाल करेंगे। आमीन। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। यीशु ने हवा में बातें नहीं की। याद रखिएगा इस बात को। यीशु ने ऐसे ही बातें नहीं की, ऐसे ही वादे नहीं किए। यीशु ने जो कुछ भी कहा है वो हक है और उसको कभी भी कोई बदल नहीं सकता। उसको कभी भी कोई बदल नहीं सकता। उसका कलाम कभी तब्दील नहीं हो सकता। वो ला तब्दील है। हालेलुया। दुनिया के लोग वादा करते हैं, वादे से फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, अपनी बातों से बदल जाते हैं, पर यीशु अपनी बातों से कभी फिरता नहीं। जो कुछ वो कहता है वो पूरा होता है। आमीन। सो आइए मेरे अजीजों, अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर ले और कहें कि खुदावंद तेरे इस कलाम के ऊपर चलने के लिए, तेरे कलाम की बातों के ऊपर मैं अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। मैं अपने आप को रेडी करता हूं और अपने आप को डेडिकेट करता हूं इस खिदमत के लिए कि तूने कहा कि तुम में जाकर मेरी गवाही देनी है। तुम्हें पाक रूह की कुदरत और पावर मिलेगी। रूह कुद्दस तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें सिखाएगा कि तुमने क्या बातें करनी। आज अपने आप को तैयार कर लीजिए कि यीशु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। वो हमेशा हमारे साथ है। उसने अपना इख्तियार हमें दिया है क्योंकि उसने बाप से इसी तरह इख्तियार पाया, ताबेदारी फरमाबरदारी में रहकर, और हमें भी ताबेदारी और फरमाबरदारी में रहकर वो इसी तरह उसने अपना पाक को अपने लोगों पे नाज़िल किया ताकि वो उसके कलाम को वुसअत दे, ताकि वो उसकी बादशाहत को वुसअत दे, ताकि वो उसकी खिदमत करे और बहुत सारी रूहों को उसके पास लाए जो भटक चुकी है, जो खुदा से दूर जा चुकी है। ऐ आसमानी बाप, तेरे बेटे बेटियों के लिए कसरत की बरकत चाहता हूं। यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करना और इस कलाम के वसीला से इनकी जिंदगियां कसरत से बरकत पाए। आमीन, आमीन एंड आमीन।